joining us this evening. It's an extremely special evening for all of us. Uh, and time flies. It's been 10 years, and I think all of us have had the honor, have been so fortunate to be part of this film called Rang De Basanti, a movie that became a movement. I would like to call up Ronnie, Mr. Ronnie Screwvala, and Amrita to share their thoughts with you. And I'll also request when we share our thoughts, I think we'll all have to step back because once the stage fills up. Rakesh, we want to first hear your thoughts before our thoughts start up. It all started with your thoughts before everybody else's thoughts start up. So we'll start with you. I had been rehearsing this all night yesterday, and now I can't say a word. I think I'll break down. Okay, so maybe I'll say a few words actually. Firstly, welcome Amrita. I remember her being a production executive from UTV on that show. So for her, time has not flown because I think in 10 years now she heads the Disney studio in India, and I think that's a great movement for her. I have two very sharp memories of Rang De Basanti. Firstly, UTV was just starting off and getting into movies, and we had some really big flops when we started off. And most people looked at us and said, so who's this South Mumbai Parsi gentleman trying to do Hindi movies? And I think many people told us, you should get out of this. And for us, really, Rang De Basanti was a turning point in shaping what was otherwise going to be a studio that could have been of the past and became the present. And I think for that, we have only phenomenal memories for that. So it's a very, very, very special movie. For most people at that stage, everyone thought, wow, what a lucky break that you started there. But if you look at that movie, and if you look at what went behind it and all the efforts and the thought process, it was anything but luck. And I think we had more than our challenges. And I just want to remember one serious challenge, where about, I think 10 days before the movie was getting released, we got a call from Sharmila Tagore, who was that time was the censor board chairman, and said, listen, I think we're not going to be able to give you the censor certificate for this movie. And we were all wondering, and we all met at Amir's place that evening. And typical Amir style, he looked straight at me and said, Ronnie, we've made this movie with a clean heart. Now, if they ask us to cut even one scene, we should not release this movie. And my heart kind of fell, because on one side, I fully agreed with what he was saying. And on the other side, here was a small fledgling studio where 40 crores we had spent on the movie and another 8 crores on publicity. And I could visualize 48 crores going into a cupboard, getting locked, and forever never getting released. Cut to the next day, or I think the day after that, we all land up for a special screening in Delhi. We didn't know what we were in for. And inside we go in for the screening of the movie, and those were really memorable days. And there were just 6 or 7 or 8 of us in the theater. And we had the defense minister at that time, Pranab Mukherjee, who is now our president, very smartly flanked by Vaidya Rehmanji on the left and Sharmila Tagore on the right for the entire screening, just so that we could have a good mood for him across the... and then in front of him sat down the head of the Armed Force, the head of the Navy, and head of the Air Force. All 3 of them had their helmets on. Pranabji couldn't see, so he asked them to remove their caps and put it down on their seat. And then the movie started, and it finished. And I remember that very, very clearly, because firstly, our hand was in our mouth in many ways. But I think it was also a special day because Pranabji got up and said, I like the movie, why am I here, And I think Sharmila ji was trying to remind him that, sir, the defense minister gets shot in the movie and you're the defense minister. And he said, not at all, I think it's a fantastic movie, it should have got released. And that was the power of somebody who could just say whatever he wanted. And I think the head of the Armed Force and the Navy looked at all of us and said, good movie. And the head of the Air Force looked at all of us and he said, I get 10 calls from mothers every month wondering about their sons who fly our MiGs. And after your movie, I'm going to get 100 calls a month. But go ahead, it's a fine movie. And I think that, to me, resonated very specially because we really work
and live in an incredible democracy that allows us, and I know a lot of people of us have a lot of skepticism on what we can and can't do, but to me that was a very special moment of what we can do in this country if we really move that. So those are my two very special memories, and I'll pass on to Amrita to say a few words too. Amrita. Okay. Really, I mean, I'm very humbled to be here. I'm really representing Sid and, the company. Sid is not here. We're missing him today. And I just want to say I feel really emotional. I might cry because it was my very first film in my very early years in UTV, which I worked on this movie with both of you all. Thank you. From start to end. And it was really, really special. And I think even till today, when we think about movies that have done very well for us at the studio, you usually think about movies which, have done so much box office and this and that. But with this movie, like Rakesh said, it's been such a movement. And, it's really been always about what you feel when you watch the film rather than numbers or anything. And I think it's so special that we almost made a movie as an ode to Rang De Basanti in No One Killed Jessica. Because, this movie really, like Ronnie said, shaped the DNA for the studio, shaped many of our careers. सच बोलूं कि ऐसी मतलब एकदम सच ओके मेरे को हमेशा ही ऐसा लगता है कि जो हमारा काम होता है वो कभी पूरा होता नहीं, हमारे हाथों से छीन लिया जाता है और थोड़ा मौका और मिलता तो इसको थोड़ा और कुछ करते, थोड़ा ये करते, थोड़ा वो करते, तो वो फीलिंग तो हमेशा आती है. बट वो किसी भी आर्टिस्ट को आएगी, भले वो एक्टर हो, म्यूजिशियन हो, पोएट हो. बट कई चीज़ें ये कहने के बाद मैं ये भी बोलना चाहूँगा कि कई चीज़ें ऐसी भी होती हैं जो एक बार हो जाती हैं तो उनको चाहे आप जितना रिवाइज कर लो वो वापस शायद उनमें वो पहली वाली बात ना हो. तो दोनों चीज़ें सच हैं. आपका उस टाइम मेंटल सिचुएशन क्या है तो तभी पता चलता है. तो रंग दे के साथ कई बार हुआ है हमारी ये फीलिंग आई है कि इसको थोड़ा यहाँ से छोटा करते, थोड़ा बड़ा करते, इसको ऐसे करते वैसे. जैसा कि आपने बताया कि आमिर ने काफ़ी वक्त लगाया फिल्म को साइन करने के लिए और ग्रीन सिग्नल देने के लिए, कभी आपको उस दौरान ऐसा भी लगा कि आमिर के बगैर भी बन सकती है और कोई ऑल्टरनेटिव था आपके पास? आई थिंक आपने वो मैं क्लियरली बता नहीं पाया आपको. 20 मिनट में आमिर ने हाँ बोल दिया था. मेरी तरफ से बनाने में 18 महीने और लगे थे और उनको वेट करना पड़ा था, पर वो वेट किया था उन्होंने. 20 मिनट की नरेशन थी, 25 मिनट की, और उसमें हाँ हो गई थी. हाँ मतलब हम दोनों समझ गए थे कि ये फिल्म कर रहे हैं और अब नेक्स्ट लेवल क्या है, कैसे करना है, कब शूटिंग है, वो एकदम शुरू बात हो गई थी. वो उस और वो सिर्फ आमिर के साथ ही नहीं, हम सबके साथ ही ऐसा हुआ था. As we see in the poster, Yeah. So this sort of defines Rang De Basanti in our minds, and it's sort Yeah. of become an iconic sort of thing. So how did you decide to make this shot the poster? I mean, it was very organic. There was no decision. In fact, Ronnie liked the image, and we put it out in the market, and all the distributors sent back all the posters. We still remember 2,500 posters came back to us. यार इसमें आमिर खान की शक्ल नहीं है, तुम मेरे को पीट क्यों दिखा रहे हो? तो ये कैसा हो गया था. तो हमने कहा सही है, हमारा पोस्टर 2 भी था. एक दिस वाज द टीजर कि हम टीज करें लोगों को, और एंड फर्स्ट वुड बी द बैक्स एंड देन दे वुड टर्न अराउंड in the next poster. So we जो होता है, it was a strategy. But teaser poster came back to us. And then मजे की बात यह है कि when the media picked it up, somehow they stayed with some. So I still remember the Sensex had crossed 10,000. So Economic Times half page they printed this image saying something. Various magazines, whether it was Outlook, whether it was various, they kept using this image. Somehow this image was given back to us by the media. And then it kind of stuck on and became cult. Yeah. one more thing related to the music, like the choice of couple of singers, like Mohit. I mean, this is before he became the star that he became, and Daler sort of
for the title song. How were those decisions? Whose were they? Yours and AR's together, or Prasoon was also sort of? It's not important. So I still remember Daler Paji came for the title song, and Rahman being Rahman, he was inside his room, and nobody could go in. And myself and Prasunji were outside, and he started speaking to Prasunji, and he ordered an elaborate dinner. He said, ये तो Italian हैंगे. So I was quiet for 1 hour. Then he told, ये कोई Italian बंदा बैठा है, कोई डायरेक्टर. मेरे बाल लंबे होते थे उस टाइम. So अब उनको अंदर से गुस्सा आने लगा कि यार 2 घंटे हो गए, 3 घंटे हो गए, ये मैं कमरे में बुला के नहीं रहे रहमान मेरे को गाना गाने के लिए. और and Rahman was doing the tune better and better. 3-4 घंटे हो गए. Somehow Prasunji is keeping him calm. और फिर I started speaking in Hindi from Italian. And you will not believe it. He went into the room when the song was ready. In one single take, start to finish, he nailed the song. Wow. One single take. Wow. That was it- Delay amazing. No, he actually felt that, I don't know how these guys are working, because you don't know, because I was also, we were working on the script also, to talking various things, and he was there. He first was taking interest, and he ordered food. After that, he went off to sleep, and suddenly AR does like that. Suddenly he says, "Let's record," and he was sleeping, so we woke him up, and we were thinking like he will be able to. No, now it'll take a lot of time, it seems. He went there, and that we must give to Diler Paji, that he went there and just one take he gave us the whole song. So it was wonderful. I think that's what the talent is. And Mohit, here we worked earlier, and when we were talking about this song, and I think AR also likes Mohit's voice. He is already heard, and then I think ideas met. Rakesh ji, me, AR, I think it's jointly decided that we should. And since I know Mohit very well, so I was the one who made the call, and he was next day there, and he recorded Khoon Chala. So I think it is all collaborative and joint decision. But we are very happy that all this came together, and Mohit really added a great dimension to the film. Thank you, Mohit. या प्रसून जी की याददाश्त थोड़ी कमज़ोर होती आ रही है. 10 साल हो गए. तो मोहित को फ़ोन लगाया कि जल्दी आओ जल्दी आओ जल्दी आओ. मोहित सुबह की जो पहली फ्लाइट थी कुछ ले कर को राके वो सुबह सुबह पहुंच गए. बट हम तो रात को काम करते हैं वहाँ पे, और 6:30 बजे 7:30 बजे पैकअप होता है. हम आप पैकअप करके अपने होटल जाके सो गए. या आए 8 बजे की स्टूडियो खुलेगा, कुछ होगा, रिकॉर्डिंग होगी. आई रिमेंबर देन वी रिकॉर्डेड दैट इवनिंग, एंड व्हेन द वॉइस केम आउट, व्हेन ही sang, it is, it's like, when you're made for each other. That song was made for Mohit, and Mohit was made for that song, and it just... the entire candlelight movement that started with Rang De Basanti, and it later just percolated into real life as well with the entire Jessica Lal murder case and many other cases. How do you look back at that particular thing? I think ये फिल्म का जो असर हुआ बहुत गहरा हुआ ऑडियंसेस पर, और एक बहुत ही अलग लेवल पे ये फिल्म लोगों के जहन पे छा गई, उनके जज्बातों के साथ घुल मिल गई. तो लिहाजा आई थिंक परहैप्स दैट वाज द फर्स्ट टाइम दैट देयर वाज अ, पहली दफ़ा हुआ कि लोग बाहर निकले अपने घरों से और उन्होंने किसी चीज़ के लिए एक होकर आवाज़ उठाई. तो ये फिल्म की ये फिल्म का कमाल है कि फिल्म का इतना गहरा असर हुआ न सिर्फ हम लोगों पर जिन्होंने फिल्म बनाई, लेकिन हमारी ऑडियंसेस पर भी. That you wrote, I think very, very powerful lyrics somewhere. How do you look back at Khoon Chala? If you can just tell us. Oh, Khoon Chala is a very special song to me, and I still feel that एक लाइन मैंने लिखी थी, ले गाढ़ी उम्मीदें. वो गाढ़ी वर्ड में यूज नहीं कर पाया, और लास्ट तक मैं सोचता रहा यार ये मैंने डालना चाहिए था वहाँ पे. बट everything else, it's Faridun, about poetry, so you will always remember this song like this, because Faridun comes from the great tradition of poetry, and I think it's
अगर आप उस मेरे लिए सॉन्ग का टेस्ट होता है कि अगर आप उसको एक कागज़ पे लिख के, कोई म्यूज़िक ना हो, कुछ नहीं हो, वो रखा हो आपकी टेबल पे, कि आप उसको दोबारा पढ़ेंगे, क्या उसमें केडेंस है, मीटर है, रिदम है, कल्पना है, लेयर्स हैं। मुझे लगता है ये गाना एक कविता की हैसियत से, एक शायरी के हैसियत से क्वालिफाई करता है। ये वन ऑफ दोज सॉन्ग्स विच आई फील हैज़, इसका अपना वजूद है एक कागज़ पे, और वो इस गाने की खासियत है। मैं फरीदुन के इस सवाल को थोड़ा और आगे बढ़ाता हूँ। इस तरह के शब्द पहले हमारे पास सुने नहीं गए थे फिल्मी गीतों में। आपने क्या जद्दोजहद आपके मन में थी? क्या आपके मन में ये था कि कुछ नए शब्द देने हैं, या यही शब्द सटीक होते थे, चाहे मोह मोह हो, चाहे खूंचला हो, अन्य जो भी हैं शब्द? जैसे कि मैंने पहले भी कहा कि कई चीज़ों के लिए मैं आमिर साहब का बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने मुझे, मेरी परवरिश फिल्मी गानों पे नहीं हुई। मैं उत्तराखंड से मेरी पला बढ़ा, और मेरे घर में फिल्मी गानों का बिल्कुल ही रिवाज नहीं था। हम लोग फिल्मी गाने नहीं सुनते थे। मेरे पेरेंट्स दोनों क्लासिकल म्यूजिशियन थे, दोनों ने मास्टर्स किया है म्यूज़िक में, और हम लोगों को ज़्यादातर क्लासिकल म्यूज़िक सुनने को मिलता था। और फिल्मी गानों का कैसेट या कोई कहीं सीडी, ऐसा, और सीडी तब होते भी नहीं थे, ऐसा कुछ। तो मेरी जो वोकैबुलरी थी, मेरी शब्दावली थी, उसमें दिल जिगर जानम नहीं था। और मुझे लगता भी नहीं था कि मैं इस तरह के गाने लिख सकता हूँ। और मैं अपनी तरह से कविता पढ़कर बड़ा हुआ, और जब मैंने लिखना शुरू किया, राकेश जी को मिला, और कुछ और ऐसे हैं, इवन यश जी को और आदि को, कि उनको लगा कि ये कुछ नयापन है, कुछ फ्रेशनेस है, मेरे शब्द कुछ अलग तरह के थे। तो मुझे लगता है कि मुझे शुक्रगुजार होना चाहिए उन सब का, जिन्होंने मुझे दिल जिगर जानम से मुख्तलिफ जो मेरी एक पहचान थी, उसे पनपने दिया, और उसे प्यार दिया। तो पौधा तो वही पल बढ़ सकता है जिसको आप सींचें। तो मुझे सींचने के लिए एक धरती और धरातल और एक उर्वर भूमि जिन्होंने दी, उनका मैं हमेशा शुक्रगुजार रहूँगा। This film has changed you. Also, is there any message in this film that resonated with you, that has stayed with you? Yeah, जो ये फिल्म का जो मेन मैसेज है वो यही है कि हम सब हमारे समाज में देखते हैं कुछ चीज़ें हो रही हैं, और अक्सर हम उससे अलग रह जाते हैं, उससे हम जुदा हो जाते हैं, क्योंकि हमको लगता है यार हमारी ज़िंदगी ठीक चल रही है, मैं स्टूडेंट हूँ, मुझे आगे मेडिसिन करना है, या मैं इंजीनियर हूँ, या मेरा बिजनेस है, जो भी हमारा काम काज है, मैं किसी चीज़ में क्यों पढ़ूं? अक्सर हमारा ये, तो ये फिल्म हमें ये बताती है, ये फिल्म हमें ये कहने की कोशिश कर रही है कि अगर हमारे समाज में कोई दिक्कत है, कोई प्रॉब्लम्स हैं, कोई कठिनाई है, तो वो हमें ही साफ करना है, वो हमें ही उसको बनाना है, वो हमें ही उसको ठीक करना है। कोई अमेरिका से, जापान से कोई आके हमारा प्रॉब्लम सॉल्व नहीं करने वाला। तो हमको ही फेंस, जो बोलता है ना फेंस सिटर्स, हमको फेंस से उतर के हमको ही अगर हाथ मैले करने हैं तो हाथ मैले करने होंगे, लेकिन हमें हमारा देश जो है हमें ही बनाना है। वी हैव टू बी इन्वॉल्व इन नेशन बिल्डिंग। तो ये यूथ के लिए मैसेज था, न सिर्फ यूथ के लिए बल्कि हम सब के लिए ये एक मैसेज था इस फिल्म का, कि हमें हमारे देश के साथ जुड़ना है, हमें हमारी मिट्टी के साथ जुड़ना है, और यहाँ जो कुछ भी तकलीफें हैं उसके साथ हमें ही जूझना है, और हमें ही इसको आगे ले जाना है। ये मैसेज था इस फिल्म का। तो आई थिंक ये असर हम सब पे कुछ ना कुछ हुआ है, आई फील। Has really divided the Bollywood film industry. It has snowballed into what it is today. So what is your reaction to that, to how everybody else has taken your statement? एक्चुअली मुझे क्या लगता है कि कुछ लोग हैं जो मेरी बात समझ पाए हैं, और कुछ लोग हैं जो मुझसे नाराज़ हैं, और उनकी जो नाराज़गी है वो मैं समझता हूँ एक्चुअली। और अगर मैं उनकी जगह होता तो शायद मैं भी नाराज़ होता, क्योंकि उनको कुछ ऐसा बताया गया जो सच नहीं था। उनको ये बताया गया कि आमिर खान जो है वो देश छोड़ना चाहता है। आपको क्या लगता है? तो अगर मुझे भी कोई कहे कि भाई फलाना ढमका जो है वो देश छोड़ना चाहते हैं, तो मुझे भी बुरा लगेगा, यार मेरा देश है, आप छोड़ के जा रहे हो, इतना बुरा तो नहीं है। तो ये जो उनको बताया गया आम इंसान को, आम नागरिक को हिंदुस्तान के, कि आमिर खान देश छोड़ना चाहता है, आपको क्या लगता है? तो जाहिर है बुरा लगेगा। मुझे भी बुरा लगता अगर मुझे कोई ऐसा कहता, तो वो मैंने कभी कहा नहीं। तो लिहाजा जो लोग शायद मुझसे नाराज़ हैं, उनकी नाराज़गी मैं समझता हूँ, मैं उनको
दोष नहीं देता, क्योंकि उनको गलत फहमी हुई है। इसकी कुछ हकदार आप मीडिया भी हैं, जो आपने यही सवाल सबको पूछते गए कि किरण जी, आमिर खान जो हैं वो देश छोड़ना चाह रहे हैं, आपको क्या लगता है? जो इसमें कोई सच्चाई नहीं थी। मैं एक दफ़ा ये साफ कह दूं सभी को, हिंदुस्तान के सभी लोगों को, कि मैं यहीं पैदा हुआ हूं और यहीं मैं मरूंगा। ना मैंने देश छोड़ने के बारे में कभी सोचा, ना किरण जी ने कभी सोचा देश छोड़ने के बारे में, और ना आइंदा हम ऐसा कभी कदम उठाएंगे। बल्कि मैं जब देश के बाहर रहता हूं तो 2 हफ्ते से ज़्यादा मैं रह नहीं पाता। आई गेट होम सिक, मुझे वापस आने की जल्दी होती है। मैं तो एक बात इसमें कहना चाहता हूँ आमिर, जी, जी। जस्ट टू ऐड, और मैं लिबर्टी लेता हूँ क्योंकि मैं आमिर को बहुत बहुत अरसे से जानता हूँ, और एक इंसान की हैसियत से और एक कवि की हैसियत से भी जानता हूँ। अगर इनका आप काम देखें, और इनके हर काम में समय लगता है, वक्त लगता है। आमिर खान के काम को अगर आप सामने रखते हैं, तारे ज़मीं पर देखते हैं आप रंग दे बसंती देखते हैं, आप इनके सत्यमेव जयते देखते हैं, आप इनके कामों को देखते हैं, तो मुझे तो लगता है ये सवाल बड़ा बेमानी सा लगता है कि आप आमिर से ये सवाल पूछें कि वो इस देश के हैं या देश में रहना चाहते हैं। मतलब ये सवाल भी नहीं उत्पन्न होना चाहिए उनके बारे में, क्योंकि इतना वक्त, और अपने आर्टिस्ट जो होता है वो दिल से काम करता है, और इतना उनका बॉडी ऑफ वर्क है जिसको अगर नज़रअंदाज हम करते हैं तो उनके साथ बहुत नाइंसाफ़ी करते हैं। दिल्ली चेयर शूट कर रहे थे वहाँ पे समोद के पास, व्हेन आई गॉट द फर्स्ट 3 इनक्रेडिबल इंडिया ads to do, and I got the call from ministry and I called Prasun ji, आप लिखेंगे? He said हाँ बिल्कुल. And car journey used to be 2 hours every day going to the location. I called आमिर यार इंडिया के लिए करना है। He said मेरा बिल्कुल एकदम सही है कि no question asked, nothing. So I think I've answered that. Let's not go into No, मैं इसका आंसर your नहीं, मैं इसका आंसर fears. They are your fears. You'll have to sort them out yourself. एक मिनट राकेश जी, मैं इसको आंसर कर देता हूँ। देखिए, इनक्रेडिबल इंडिया कैंपेन, कोई पहली बात तो यह है, मैं आमिर खुद जवाब दे सकते हैं चीज़ का, पर मैं उनके बिहाफ पे भी बोल सकता हूँ कि ये कैंपेन किसी और वजह से नहीं, इसलिए किया गया है और इसलिए हमने किया, और आमिर ने इसलिए इसके लिए अपना वक्त और प्यार और सब कुछ दिया क्योंकि हमको लगता था कि ये कैंपेन होना चाहिए और ये कैंपेन चलता रहना चाहिए। देखिए, हम लोग रहें न रहें, जिंदा भी न रहें, तब भी ये कैंपेन चलता रहना चाहिए। लेकिन ये कैंपेन आज पैदा नहीं हुआ है, बहुत दिनों से चल रहा है, और ये कैंपेन इसलिए चल रहा है कि इसकी ज़रूरत है और इसकी ज़रूरत रहेगी। तो मुझे लगता है कि इस कैंपेन को विवाद में नहीं लाना चाहिए और इसके साथ अननेसेसरीली इसको ट्रिवलाइज नहीं करना चाहिए, और इसकी गरिमा को समझते हुए जिन्होंने इसके लिए वक्त दिया और आमिर ने ग्रेशियसली इतना वक्त उसको दिया है, उसकी इज्जत की जानी चाहिए। आमिर आपसे ये सवाल है कि आपने तो सफाई दे दी, पहले भी स्टेटमेंट इशू किया था, इस पूरी कंट्रोवर्सी ने आपको और किरण जी को कितना आहत किया है, कितना हर्ट हुए हैं आप, जो रिएक्शन हुआ है? हाँ। और दूसरा सवाल ये कि हाल ही में कई नेताओं ने बयानबाजी की है, जो लेटेस्ट हैं वो उमा भारती जी हैं, जिन्होंने एबीपी न्यूज़ के प्रेस कॉन्फ्रेंस कार्यक्रम में ये कहा है कि जो मोदी जी ने, प्रधानमंत्री ने दुनिया भर में जाकर एक छवि बिल्ड करने की कोशिश की थी इंडिया की पॉजिटिव, उसको थोड़ा सा धक्का लगा है आमिर के बयान से। तो कैसे रिएक्ट करेंगे इन सब बातों पर? जी, सबसे तो पहले मैं इसी पे रिएक्ट करता हूँ। जैसे आप बता रहे हैं उमा जी ने ये बात कही, तो मैं फिर दोबारा दोहराता हूँ कि सभी को ये बताया गया कि मैं एक तो देश छोड़ना चाहता हूँ, ये कहाँ से आइडिया है मुझे पता नहीं कि मैं देश छोड़ने वाला हूँ, और दूसरा ये सभी को बताया गया कि मैंने भारत देश के लिए कहा कि भारत देश इंटॉलरेंट है। ये 2 चीज़ें सबको बताई गई, तो जाहिर है ये सुनकर लोग नाराज़ होंगे। तो जो लोग नाराज़ हुए, मुझे कोई सरप्राइज़ नहीं कि वो नाराज़ हुए हैं, लेकिन ये सच नहीं है, और आपके ज़रिए मैं ये आज साफ़ करना चाहता हूँ। आप मेरा अगर इंटरव्यू आपने देखा हो तो आप तफसील से देख सकते हैं, कहीं पर मैंने ये नहीं कहा है कि देश जो है वो इंटॉलरेंट है। देखिए, हर देश में, हर समाज में, हर जगह कुछ लोग होते हैं जो नेगेटिव होते हैं, कुछ लोग होते हैं जो पॉजिटिव होते हैं, और मेरा ये मानना है कि जो नेगेटिव लोग होते हैं वो नेगेटिविटी फैलाने की कोशिश करते हैं, हम सबको बांटने की कोशिश करते हैं, और
भारत देश जो है वो इतना विशाल देश है, इसमें अलग अलग प्रांत हैं, अलग अलग भाषाएं हैं, इतने सदियों से हम एक साथ रह रहे हैं। इसमें हर एक प्रांत का अपना एक कल्चर है, अपनी एक ज़बान है, अपना एक इतिहास है। इसके बावजूद मुझे लगता है पूरे विश्व में शायद ये एक ही ऐसा देश होगा जो इतना खूबसूरत है, जो इतना वाइब्रेंट है, जो इतना अलग है, इतनी डाइवर्सिटी है इस देश में। मुझे लगता नहीं कि कोई भी और देश होगा इस वर्ल्ड में जो इतनी डाइवर्सिटी के साथ भी हम एक साथ इसमें रहते हैं। तो ये तो हमारे देश की स्ट्रेंथ है, ये तो हमारे देश की ताकत है। इस ताकत में जब भी कोई हमें बांटने की कोशिश करता है तो मुझे बड़ी तकलीफ होती है, क्योंकि फिर हम देश को कमज़ोर करने की बात करते हैं। तो जब मैंने आवाज़ उठाई, मेरी आवाज़ यही थी, और आइंदा भी अगर ज़रूरत पड़े तो मैं आवाज़ उठाऊंगा कि इस देश को हम कमज़ोर ना बनाएं। मुझे लगता है हमारे प्रधानमंत्री ने भी शायद यही चीज़ कही है कि देश को की एकता हम बनाए रखें, हम इसको बांटने की कोशिश ना करें, हम लोगों में पॉइजन स्प्रेड करने की कोशिश ना करें। ये अगर मैं गलत नहीं कह रहा हूँ तो हमारे प्रधानमंत्री ने भी यही बात कही, और मैं कंप्लीटली उनके साथ सहमत हूँ इस बात पे, और मुझे भी ये बात लगती है। तो मैं एक ऐसा इंसान हूँ जो अपने देश से बहुत मैं प्रेम करता हूँ, और मुझे लगता है कि, और मैं बल्कि जो लोग, कुछ लोग हैं नेगेटिव जो ऐसा कर रहे हैं, लेकिन उनसे भी मैं हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करता हूँ कि ऐसा ना करें। उनसे भी मैं हाथ जोड़ के इल्तिजा करता हूँ कि ऐसा ना करें, क्योंकि हमारे देश की जो ताकत है वो यही है कि हम इतने अलग हैं, अलग अलग प्रांत के लोग, फिर भी हम एक हैं। यही हमारी ताकत है, यही हमारी स्ट्रेंथ है, और इसको हमें बनाए रखना है। तो यही मैं कन्वे करना चाह रहा था उस वक्त। तो अगर किसी को बुरा लगा हो, वो इसकी वजह से बुरा लगा होगा शायद कि उनको अलग बात कही गई है कि आमिर जो है देश को बदनाम कर रहा है, देश इंटॉलरेंट है, ऐसा कह रहा है। मैंने आज तक ऐसा कभी नहीं कहा, ना मैं देश छोड़ना चाहता हूँ, तो ना मैं देश। तो ये जो गलत बातें लोगों को कही गई हैं, चाहे वो पॉलिटिशियंस हों, चाहे वो आम इंसान हो, ज़रूर उनको ये बात लगी होगी, लेकिन ये सच नहीं है। मैं साफ करना चाहता हूँ कि ये मैंने आज तक कभी नहीं कहा। और मैं आपको 2-3 चीज़ें और याद दिला दूँ। देखिए, मैं कहूँ उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, मैं अपने आप को देश प्रेमी कहूँ, उससे कुछ फ़र्क, उसका कोई मायने नहीं है। आप मेरे एक्शंस देखिए, पिछले 25-27 साल से आप मेरे एक्शंस देखिए, किस किस्म की फिल्में मैंने की हैं। टेलीविज़न शो पिछले 4 साल से जो मैं कर रहा हूँ, सत्यमेव जयते, क्या ज़रूरत है मुझे वो शो करने की? देश से प्रेम है तभी मैं ये शो कर रहा हूँ, मैं अपना वक्त निकाल के मैं ये शो कर रहा हूँ, और इससे मुझे खुशी होती है, क्योंकि मुझे लगता है कि मैं नेशन बिल्डिंग में कुछ ना कुछ अपना योगदान कर रहा हूँ, कुछ मैं पॉजिटिव चीज़ करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो मैं कहूँ या मतलब मेरे कहने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मैं तो अपने आप को कुछ भी कह सकता हूँ। मेरे एक्शंस क्या हैं, 1-2 साल नहीं, 25 साल से मेरे एक्शंस क्या हैं, वो आप देखिए। इंसान के एक्शंस बताते हैं आपको वो किस किस्म का इंसान है। और मैं उस परिवार से हूँ, मेरे परदादा जो हैं मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, वो इस देश की आज़ादी के लिए लड़े हैं, उस ख़ानदान से मैं हूँ। तो सवाल ही नहीं उठता कि मुझे इस देश से किसी से भी कम प्रेम होगा, किसी से भी कम। और किसी और को मैं कभी नहीं उंगली उठाता कि भाई कोई, किसी को मैं कह दूं कि भाई यह देशद्रोही है। ये बहुत बड़ा इल्ज़ाम है, बहुत ही बड़ा इल्ज़ाम है। मैं किसी पे ये इल्ज़ाम नहीं लगा पाऊंगा। कितने हर्ट हुए इस कंट्रोवर्सी से आप? देखिए, हर्ट तो मैं हुआ हूँ, और हर्ट मैं इसलिए हुआ हूँ कि और भी लोग हर्ट हुए हैं। देश की जनता जो है, जिसको ये गलत बताया गया, वो हर्ट हुई है, उसके साथ साथ मैं भी हर्ट हुआ हूँ। मेरी जवाब पूरा हो जाए। Yeah, you know, that's what I'm saying to you. People don't know what I've said actually. क्योंकि हर इंसान ने तो वो इंटरव्यू देखा नहीं है, तो लिहाजा जो उनको मोटी मोटी बात बताई गई है उसी पे लोग रिएक्ट कर रहे हैं। तो उनके रिएक्शन पे मुझे रिएक्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि मेरे समझ से उनको सही चीज़ बताई नहीं गई है। असलियत यह है कि मैं अपने देश से बेहद प्रेम करता हूँ, और असलियत यह है कि मैं यहाँ से 2 हफ्ते से ज़्यादा रह नहीं सकता। अगर मैं बाहर जाऊँ देश से, तो मुझे 2 हफ्ते के अंदर मुझे लगता है कि मैं लौट जाऊँ। तो आई थिंक कि लोगों, जो आप कह रहे थे मुझे क्या हर्ट हुआ है, हाँ मुझे हर्ट हुआ है, लेकिन मेरे साथ साथ बहुत सारे लोगों को हर्ट हुआ है, जिनको लगा कि यार आमिर क्या उटपटांग बातें कर रहा है। तो उनको भी बुरा लगा है, मुझे भी बुरा लगा है, लेकिन ये गलत फहमी पैदा की गई है, जिसका दोष मैं थोड़ा बहुत आप लोगों को दूंगा, क्योंकि आप लोगों ने बड़ी बेरहमी से मेरे अल्फाजों को ट्विस्ट किया।
आपसे भी मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप प्लीज़ ऐसा ना करें। राकेश जी, आपको इस फिल्म का 10 साल बाद आपको इसका पार्ट 2 बनाने की ज़रूरत महसूस नहीं हुई? और ख़ास तौर पे अब जो माहौल है देश में, इंटॉलरेंस भी उठ रहा है, प्लस पेट्रियटिज्म को लेके भी हम काफ़ी चीज़ें उठाने लगे हैं। ये इंटॉलरेंस बड़ा एक फैशनेबल वर्ड हो गया। इसको हम ऐसा यूज़ करने लगे जैसे कि भाई मैं ऑफिस के लिए लेट हो रहा हूँ, ब्रेकफास्ट लगा देना, थोड़ा सा उसमें इंटॉलरेंस भी डाल देना क्योंकि वो खाना हजम नहीं होगा नहीं। So I think it's nothing like that. We are a 5,000-year-old nation and known history for a good 2,500 years, and it's gone through ups and downs. Earliest I remember Shaivites and Vaishnavite there was a bloodbath between Vaishnav and Shaivites, Buddhists and Hindus. So इसमें intolerance की बात नहीं होती. Human beings have tribal mentality and they want to feel secure. They feel the fear. So because of that they attack, they protect, all that. We all know that. So ऐसा कुछ नहीं है. रही बात रंग दे बसंती पार्ट 2 की, ये सब मर चुके हैं. और मतलब कुछ कर मेरा सोचना पड़ेगा. कमलेश जी, ये तो आप प्लीज़, आप यहाँ बैठे क्या कर रहे हैं, जाइए वापस और लिखना शुरू कीजिए. नहीं, वो उसकी जो स्पिरिट है, सीक्वल नॉट इन द सेंस कि भाई चलो स्टोरी कंटिन्यू होती है, वही किरदार है, मगर जो स्पिरिट है, हाँ वो स्पिरिट जिंदा है और उस पर बाकायदा दूसरी फिल्म बन सकती है, वो अलग बात है, मगर स्पिरिट की बात है. उसी कहानी को, उसी किरदारों को लेके कोई बहुत मजबूरी नहीं है चलने की. मुझे उसका उपाय ये लगता है कि जैसे भगत सिंह वगैरह वापस आते हैं आज़ाद, वैसे हम लोग वापस आ जाएं. That वो पार्ट 2 बन सकता है. So you tweeted in her support. So I just want to know that if in future film, would you want to work with her or would you cast her in a film? You know, when I saw the interview, जब मैंने इंटरव्यू देखा सनी जी का, मुझे बुरा लगा जिस तरह से उनको सवाल पूछे जा रहे थे. मुझे तकलीफ हुई और उनसे ये भी सवाल पूछा गया कि आप आमिर के साथ कभी आपको काम करने का मौका मिलेगा. उनका जवाब था शायद नहीं. वो बात भी मुझे लगा कि नहीं, ऐसा क्यों कह रही हैं वो. तो मेरा ये मानना है कि अगर कहानी सही हो, किरदार सही हो और हम दोनों उस फिल्म में शूट करें तो मुझे कतई प्रॉब्लम नहीं है उनके साथ काम करने की. उनकी जो पर्सनल लाइफ है मुझे उससे कोई लेना देना नहीं है. वो एक इंसान है, वो एक औरत है और उनके साथ उनकी मैं इज्जत करता हूँ एक इंसान के तौर पे, एक औरत के तौर पे, और मैं यकीनन उनके साथ काम करना चाहूँगा. मैं इसमें यही कहूँगा कि एक चीज़ मैं ऐड करना चाहता हूँ. देखिए कि एंड आई होप कि वो मेरे साथ काम करना चाहें. ये भी बात. एक और पॉइंट मैं कहूँगा कि देखिए किसी की प्रोफेशनल चॉइस पर भी आपका कमेंट हो सकता है, लेकिन क्योंकि कोई ज़रूरी नहीं है कि कोई प्रोफेशन, कोई व्यवसाय बहुत अच्छा व्यवसाय हो, कोई ज़रूरी नहीं है. और वो अच्छा व्यवसाय नहीं है तो उसकी निंदा भी होनी चाहिए. मैं यही रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि आर्टिस्ट्स के नाम पे कई बार हम लोग व्यवसाय का बहुत ज़्यादा महिमा मंडन करने लगते हैं. कोई व्यवसाय जो है वो ज़रूरी है कि वो व्यवसाय जो जीवन से जुड़े हुए व्यवसाय हों वो समाज के लिए अच्छा काम कर रहे हों, समाज से किसी न किसी रूप से सकारात्मक काम कर रहे हो. तो क्योंकि सवाल उसका उठा है तो मुझे लगता है कि सनी लियोनी का जो व्यवसाय है उसकी मैं कतई इज्जत नहीं करता हूं और मुझे नहीं लगता कि उस व्यवसाय से मैं चाहूंगा हमारी युवा पीढ़ी प्रेरित हो. लेकिन उसके बारे में एक व्यक्ति को कटघरे में खड़े करके उसको बेइज्जत करना, मुझे लगता है कि कोई भी कलाकार ये नहीं करना चाहता. लेकिन इसका ये मतलब नहीं लगाया जाना चाहिए कि हम कोई कल को उसी लॉजिक से आप कल को कहेंगे कि ये तो एक ड्रग डीलर है, इसका व्यवसाय है, उसका पर्सनल काम है, तो शायद मैं उसकी इज्जत ना करूं, मैं उस व्यवसाय की इज्जत ना करूं और कहूं कि तुझे ये व्यवसाय नहीं करना चाहिए, पर वो उसका पर्सनल मामला है. जहां तक बात रही, जब वो मेरे सामने आएगा क्या मैं उसे बेइज्जत करूंगा? नहीं. क्या मैं उसका सम्मान नहीं करूंगा या उसको सबके सामने, वो शायद मेरा कल्चर मुझे अलाउ नहीं करेगा. लेकिन साथ साथ उस व्यवसाय का महिमा मंडन भी मैं नहीं करूंगा. At least I will not do it. I would think that if there are certain professions which are not playing a constructive role in building a great society,
we need to criticize as well. I think that's a free society. People have choices to make, but if their choices are not great, those also needs to be criticized. I think somewhere we have to draw a fine line. It's not such a black and white subject that we can, an interview of Manoj Bajpayee where he said that he was in the running for Amir's role, and he had to drop out of the project because over the time the film got bigger and it needed a bigger star. How much did you miss him while shooting for the film? Yesterday, day before, I went to see Aligarh with Manoj only because we share a very, very deep bonding since Hux. It was my first film, and when you work on the first film. And I don't know if you've seen Aligarh. Yeah, I've seen it. Yeah, it's he has crossed the boundaries of an Indian actor. He's now more than a world actor. No Hollywood, no Bollywood, no anything. So basically, when this role of DJ did not suit him, so that's what we came to. And before that, this film has been with us for 7 years, and we've spoken to a lot of people till you find the correct people, the correct person for everything, and then it happens. So that's the thing. One person whose name was unnecessarily, perhaps unfortunately, dragged in the entire controversy was Kiran's. What was her reaction? And after the entire thing happened, what did she more or less the same. I think also somewhere I should not have shared something which she and I spoke privately on a public platform. Certainly I should not have done that, and she made me realize that in no uncertain terms. but I have to say, जैसे हम लोग बात करते हैं, जैसे मैंने थोड़ी देर पहले भी बात की कि हमारा देश जो है वो इतना अलग अलग प्रांत हैं, अलग अलग भाषाएं हैं, अलग अलग मज़हब हैं इस देश में. तो आप मेरी फैमिली का एग्जांपल ले लीजिए. मेरी वाइफ जो है वो हिंदू हैं. जो मेरी 2 बहनें हैं, एक बड़ी बहन एक छोटी बहन, दोनों के हस्बैंड हिंदू हैं. फरहत के जो हस्बैंड उनका नाम राजीव है, निखत के हस्बैंड का नाम संतोष है. मेरे जो कज़न है मंसूर, उनकी शादी हुई क्रिश्चियन के साथ. जो मेरे बच्चे हैं 3, वो दोनों हाफ हिंदू हाफ मुस्लिम हैं. तो ये जो हम देश में देखते हैं, जो अलग अलग प्रांत के लोग हैं, अलग अलग मजहब के लोग हैं, एक साथ रहते हैं, उसका उदाहरण आपको मेरी एक फैमिली में भी मिल जाएगा. मेरी एक फैमिली में भी आपको ये उदाहरण आपको मिल जाएगा. एंड एज आई ऑलवेज लुक एट माई सेल्फ एज एन इंडियन. मैं अपने आप को एक भारतीय समझता हूं, और किरण जी और मैं, हम दोनों एक दूसरे को हम अपने आप को एक भारतीय समझते हैं. हम अपने मजहब को कभी नहीं देखते. आई एम फर्स्ट अ ह्यूमन बीइंग, आई एम फर्स्ट एन इंडियन, and I always will be. Amir, Anupam ji has been conferred with Padma Bhushan today. Ji. And he was a co-star. Ji. And he was there in the film. So has anybody spoken to him, and have you all congratulated him yet? I didn't get to know. You're just telling me for the first time. Thank you very much. We'll immediately, he's in We will Jaipur right now. definitely congratulate And him. he's missing the evening. I think I met him yesterday. So he did inform me that So he has been... very warm congratulations to Anupam. No, 3 cheers for Anupam ji. If he's... आमिर, कल के दिन गणतंत्र दिवस है, आपको भी पता है, और रंग दे बसंती में सरफरोशी की तमन्ना जो कविता थी, बड़े अच्छे से ही उसको पिरोया गया था. आखिर में भी वो आई थी. तो अगर आप 2 अल्फाज अगर कुछ कहना चाहें गणतंत्र दिवस पर, या सरफरोशी को ही अगर आप कह सकें अभी. कल गणतंत्र दिवस है और उसकी शुभकामनाएं मैं सभी को देना चाहूँगा, आप सबको देना चाहूँगा. देश भर में सभी को शुभकामनाएं देना चाहूँगा गणतंत्र दिवस की. और ये जो कविता लिखी है उसकी एक लाइन आपकी दी है. एक लाइन सरफरोशी की तमन्ना ओरिजिनल रखी, बाकी हाँ, तो बाकी लाइन प्रसून जी की हैं. मैं शायद बोल रहा हूँ, आप मुझे याद दिला दीजिए. सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है अगर तैयार दुश्मन ताक में बैठा. हाँ, है अगर तैयार दुश्मन ताक में बैठा उधर, और हम तैयार हैं सीना लिए अपना इधर. खून से खेलेंगे होली, गर वतन मुश्किल में है. सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है. आमिर, Thank you. आमिर here. Thank you. आमिर, हम सभी थिएटर में जाते हैं, फिल्म देखते हैं, तो
we always feel like this is my life-changing film. So which one was yours life-changing film? यू नो मेरे लिए कोई एक फिल्म लाइफ चेंजिंग नहीं है, मेरे लिए कई फिल्में हैं जो लाइफ चेंजिंग रही हैं, जिनका बहुत गहरा असर हुआ है मुझ पर. आई थिंक रंग दे बसंती उसमें से एक है, 3 इडियट्स उसमें से एक है, सरफरोश उसमें से एक फिल्म है जिसका बड़ा गहरा असर हुआ मुझ पर जब मैंने उसमें काम किया. लगान, ये सारी फिल्में, तारे ज़मीं पर का बड़ा गहरा असर हुआ मुझ पर. मुझे बहुत कुछ समझ में आया ज़िंदगी के बारे में, बच्चों के बारे में, रिश्तों के बारे में. तो ये सारी फिल्में हैं जिनका बड़ा गहरा असर हुआ मुझ पर. ऑल ऑफ देम हैव अफेक्टेड मी इन सम वे. कुछ ना कुछ असर हर फिल्म का हुआ है मुझ पर. 4 साल पहले मैं विजय दिवस पे लद्दाख गया था और शाम को फंक्शन था और हम सब ने, बहुत प्यारा माहौल था, सब ने एक एक कैंडल जलाई थी, 516 कैंडल्स. टाइगर हिल के वॉर में 516 जवान, यंगस्टर्स, सोल्जर्स मारे गए थे, तब जाके हमने टाइगर हिल जीता था. वो कोई एक हैप्पी एंडिंग नहीं थी वहाँ पे. तो अ ट्रू जर्नी ऑफ अ हीरो, एंड कमलेश जी taught me that in my earlier years when I was learning story writing and screenplay under him, that a hero goes into the dark cave, fight all the demons, comes out, gives his life, only then he is a hero. तो इसमें हैप्पी और ये सब ये हमें पढ़ा दिया गया है बड़ा. अभी जैसे जैसे सिनेमा और निखरेगा और सच्चाई को देखने का और हमारे अंदर आदत बढ़ेगी ऑडियंस को, और भिन्न भिन्न तरीके का सिनेमा हम देखेंगे जो आजकल हो रहा है, बहुत ही अच्छा हो रहा है. और आप यू आर सो राइट कि रंग दे वाज वन ऑफ दोज अर्लियर फिल्म्स. Now to you seeing more, much more, and it was somewhere a catalyst also, like Siddharth was saying earlier. So I don't think it's about happy ending and tragic ending. The greatest love stories in the world, Laila Majnu, Romeo Juliet, Shiri Farhat, Soni Mahiwal, they're all tragic. So it's not about happy, it's about whether it was fulfilling or not. That is more important. It's a very interesting fact. I really came to me much later. Just a couple of years back, Shailendra, our lyricist, had written line long time back, sometime in 50s. वो लाइनें मैं पढ़ के मैं हैरान रह गया, क्योंकि वो लाइनें रंग दे बसंती की आत्मा है. लाइनें ये हैं कि भगत सिंह इस बार न लेना काया भारतवासी की, देश प्रेम के लिए मिलेगी सजा अभी भी फांसी की. ये शैलेंद्र ने 1950s में लिखा, 50s में लिखा था. मैंने अभी पढ़ा 2 साल पहले. मैंने कमाल. फिर से बोलिए. भगत सिंह इस बार न लेना काया भारतवासी की, मतलब इस मुल्क में पैदा मत होना, क्योंकि देश प्रेम के लिए अभी भी सजा मिलेगी फांसी की. तो ये स्पिरिट है रंग दे बसंती. दंगल में अभी देखिए एक चैलेंज मेरा बहुत बड़ा बाकी है. आप सबको तो ये पता ही था कि दंगल के लिए मैं मोटा हुआ हूँ, लेकिन बहुत कम लोगों को ये पता है कि दंगल के लिए ही मुझे वज़न कम भी करना है, बॉडी भी बनानी है. क्योंकि जो फिल्म की शुरुआत है, जो पहला 10-15% फिल्म का, उसमें मैं नेशनल लेवल रेसलर हूँ, जैसे सुशील कुमार जी. तो अब वो जो मोटापा का जो पोर्शन था, बूढ़ा जो पोर्शन था, वो अभी ख़त्म होने को आया है. और अब जो है मैं वज़न कम करना मैंने शुरू किया है. और वो जो 10-15% है वो जून में शूट होगा. तो नाउ माई नेक्स्ट चैलेंज इज टू एक्चुअली कम बैक इन टू शेप. जैसे गजनी में था, जैसे गजनी में मेरी बॉडी थी या धूम 3 में मेरी बॉडी थी, वो बॉडी मुझे अब बनानी है. तो मेरा वज़न अभी घटना थोड़ा शुरू हुआ है. आई हैव पुट ऑन 25 किलोज. मैंने ये फिल्म के लिए 25 किलो मैंने बढ़ाया. तो 25 किलो मुझे कम करना है. और ना सिर्फ 25 किलो कम करना है, बॉडी भी बहुत सुशील कुमार की जैसी एकदम बहुत मस्कुलर बॉडी, वेरी लो फैट, ये बॉडी बनानी है. तो वो अब मेरा सिलसिला शुरू हुआ है. हाँ 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 करेक्ट. हाँ आई होप यार, आई होप, क्योंकि मुझे बड़ा मज़ा आया बहुत शर्मन और मैडी के साथ काम करके. राजू मुझे बता रहा था कि शायद 3 इडियट्स का वो शायद कुछ ना कुछ वो स्टोरी उन लोगों को मिली है जिससे वो शायद उसका सीक्वल बनाए, ऐसा कुछ वो बात हो रही थी.
आई होप. अभी मैं ये कंफर्म नहीं बोल रहा हूँ, आप लोग सुर्खियों में डाल देंगे, फिर मेरे गले में आके बात अटकेगी दोबारा. ब्रेकिंग न्यूज. तो शायद ऐसा कुछ हो, अभी देखते हैं आगे. और जो आप लोगों ने मेरा जो नाम बदनाम किया है, मेरी आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि अब आप थोड़ा मेरा नाम सुधारें भी. जो सच बात है वो लोगों के सामने रखें प्लीज. थैंक यू सो मच. थैंक यू. थैंक यू. And doing really, really well. So back to Rakesh. Please call Sham. I mean, this is Most he has to be certainly. here. So कोई भी देश परफेक्ट नहीं होता, उसे परफेक्ट बनाना पड़ता है. सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में. अतुल डीजे साला मैं कुआरा ही मर गया है. I would now request Sharman, Sid and Atul to step up, and not in any order. Please share what's going on in your hearts right now. Well, good evening to all of you. Thanks for being here. An absolute honor, one of my earlier films, and had the pleasure of working with possibly the greatest actor this country is going to produce, the greatest superstar, and a wonderful, wonderful human being, Aamir Khan. Rakesh Mehra, a director whom I couldn't have imagined to have worked with anyone better than him. I always had a dream. I remember I'd auditioned for this film, and I always had this little dream when I was started off in my theatre days that I want one film to happen to me in such a way. I'd given many auditions by then, but one audition where I finished the audition and the director should say, "Yeah, you're on, you're in the cast." And that's what happened with Rang De Basanti. I gave the audition and Mehra said, "Yeah, you're on." And I'm like, "Huh? What? Are you sure?" He sat in a room, we discussed. And then suddenly, of course, I grew in confidence as I sat with him since I was already a part of the film. I told him, "I saw your earlier film. I loved the first half. The second half didn't work." So he tells me, "Don't worry with this one. We'll work the second half also." So, well, many more such fond memories, great friendships, great time on the shoot, off the shoot. Sid, a wonderful love-hate relationship that we shared. We shared the same makeup van, and there were days where we didn't talk to each other, and then of course days where we've had the best of friendship. Atul, who never liked me too much initially, but then he's in love with me. He's been very fond of me. And Kunal Kapoor, who I really love, Soha, I've worked with in many more films. Alice, who's not with us, wonderful girl again. And yeah, well, the entire crew and Vaida ma'am, of course, the honor of just being in the same film as she was. And yeah, I hope we gather up again soon for the 20th year celebration. Sid, Atul, whoever wants to take over. Good evening, everyone. For most of India, my identity is this film. They call me the guy who killed Anupam Kher in Rang De Basanti. For me, this is a film that I can't stop thanking the universe for giving me, because all of us come in with this misplaced belief that we will be here forever because we are vain and we are actors. And there are some films that actually fuel that, feeling of invincibility by giving you a lifetime of identity. And for me, Rang De Basanti is, I'm really sorry, it's just two people for me. It's Mehra and Aamir. And this film could have been made with anybody else around Mehra and Aamir. And so thank you, Aamir. Thank you, Mehra, for giving us the opportunity to run with you guys, even before we knew how to walk. I believe Rang De Basanti kind of came at a time in Indian cinema where posterity will demand that it be remembered as a very important placekeeper in Indian cinema. I remember Aamir calling me on the day of the release. And am I allowed to say this? He said, "Sid, picture nahi chal rahi yaar." I said, "Kya baat kar raha hai?" "Haan yaar, it's only working in the multiplexes." And then in the evening he said, "No dude, it's working everywhere." And this was the film that started off multiplexes defining a big chunk of your business in this country. And
I believe that if this film came today, it'll probably stem the rot of, you know, saying we made this many crores but actually not making either a good film or a film that made any money. This would be that film that would make 1 billion crores and it would still make a lot of sense and people would still be proud that they saw it 5 times in the cinema. And for all the actors and technicians who are not here, you know, what is that line? What's that line, Amrita? And you've been saying, she's not with us. What do you mean? You know, for all the actors and technicians who are not in this auditorium today, we've all become a family, and you know, our genetic code is Rang De Basanti. And thank you so much for, you know, giving us this opportunity. And as far as my takeaway for the first few years of Rang De Basanti, I influenced a lot of young kids to start smoking. And it was a terrible influence. And I remember I used to smoke a lot during this film, especially because we were shooting, you know, lengthy takes and there was continuity. So I was always smoking a, you know, pack of Marlboro Reds. And I remember kids, when I went for the IIT screening, and they took me aside, and Ronnie and Rakesh and Maddie and everyone was on the other side. They took me to the other side in IIT Chennai and they said, "Sir, ek baar wo cigarette pee ke dikhao na, sir." So I said, "Don't ever say that to me again, but just for you." And I lit up a cigarette for them. And Sharman, Atul, Kunnu, Soha, Maddie, Wahida ji, all the actors in this film, A.R. Rahman, I had the pleasure of sitting and watching him do the background score of this film. And Rakesh Mehra and I used to go on bike rides at 3 in the morning in Chennai to free ourselves from, you know, any confusion so that we could be more awake when A.R. Rahman was playing the keyboard. And then my mother called and said, "Is Rakesh Mehra mad? How can you both go doubles without a helmet?" So these were the kind of things we did. And हंसते खेलते बनी ये फिल्म, रोते रोते बनी ये फिल्म, देखते देखते बन गई और फिल्म, और 10 साल हो गए यार. Thank you. हाय, गुड इवनिंग. जब ये फिल्म रिलीज हुई तो राकेश जी ने एक बात कही थी कि ये फिल्म अब हमारी नहीं रही, ये ऑडियंस की हो गई. और जब तक फिल्म्स ऑडियंस की नहीं हो जाती हैं तब तक वो 10 साल तक जिंदा नहीं रहती हैं. रंग दे बसंती in a true sense is audience's film. Basically, it became audience's film. Audience has kept it alive for 10 years. इसका जब पहला स्क्रीनिंग हुआ था और जब वो ख़त्म हुआ प्रसाद लैब में, हम लोग बाहर आए, तो मैंने कुनू से एक बात कही थी कि मुझे नहीं पता ये फिल्म चलेगी नहीं चलेगी, मुझे नहीं मालूम, लेकिन जहाँ कहीं भी ये फिल्म चलेगी, किसी भी हॉल में, तो उस हॉल के बाहर मैं सीना तान के खड़ा रह सकता हूँ, कह सकता हूँ कि मैं इस फिल्म का एक हिस्सा हूँ. I'll be very proud of this film. वक्त कहते हैं कि चीज़ों को या तो जिंदा रखता है या तो मार देता है. वक्त को, हमें रंग दे बसंती की टीम को सिर्फ यही कहना है कि सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए का दिल में है. थैंक यू. I was doing a documentary on Amul with Kamlesh ji, and we were in Kheda district. We spent some 6 months there. So it was a dry state, तो कुछ करने को होता नहीं था शाम को, तो हम बैठ के शायरी करते थे. तो और a favorite used to be Sahil Ludhianvi, like all of us. And कमलेश जी का एक बड़ा शेर था कि बहुत दिनों से है मशगला सियासत का, जब जवां हों बच्चे तो कत्ल हो जाए. तो आई यूज्ड टू रिस्पॉन्ड टू हिम विद खून फिर खून है टपकेगा तो जम जाएगा, बोथ साहिर. एंड दैट prodded us, documentary तो बन गई, to make a movie called The Young Guns of India.
which was on the armed revolution of India from 1919 to 1933, starting with Kartar Singh Sarawa going up to the hanging of Bhagat Singh, Rajguru Sukhdev, in between Chandrasekhar Azad handing over the baton from Bismillah and Ashfaqullah Khan to Bhagat Singh. And we researched that story. Kamlesh had a huge research on it already. Mine was more emotional. Got to the bottom of it and realized that they were all students. And they kept the pen and picked up the gun. And it was the first armed revolution after the mutiny. So we wrote Young Guns of India. It did not fly when we started narrating it. So we were heartbroken. But Kamleshi, being Kamleshi, went back. And in 3 days back, he returned with a new draft of what we have now called Rang De Basanti, where this whole spirit of the martyrs of the past came into the boys today. And what would they do? Stayed with the script for a while till my dear friend Renzel De Silva walked in. We were both into advertising. We had known each other for so long. And we started talking about it. And Ren took the script. You know, screenplays are never written, they're always rewritten. That's how movies are made. He took the script and turned it around on his head, started juxtaposing past and present in a way which had never been seen on Indian screen. And suddenly the characters were talking like in day-to-day language. There were no more dialogues. And we really didn't know whether it was right or wrong or what was going on. But it felt correct. And then came in Prasunji. Prasunji came with, you know, a lot of gold dust in his pocket. एक झोला लेके आए थे जिसमें gold dust था. And he kept sprinkling it all over, like this. And suddenly, the script had a golden sheen over it. And it had a voice. And the voice of Rang De Basanti. I'm missing AR very much. He was to come, but AR being AR is, you know AR. Yeah. Most probably he'll land up in the house in the night and stuff like that. He was the first one to confirm, and he'll be the last one to come in. अभी अभी हुआ यकी के आग है मुझ में कहीं, सुबह हुई मैं जल गया, सूरज को मैं निगल गया, रूबरू रोशनी. ये प्रसन्न जी का जादू था. I would now request Kamlesh ji, Renzel and Prasun ji to please step up and share. Guys, the pillars behind Rang De Basanti, not for them there is no Rang De Basanti. You have to get your own mics. गुड इवनिंग. राकेश ने और मैंने एक फिल्म की थी अक्स, और उसके बाद क्या करना कुछ समझ में नहीं आ रहा था. तो एक स्क्रिप्ट समझौता एक्सप्रेस हम काम कर रहे थे और बात कुछ बन नहीं रही थी, वो भी शेल्व हो गई किसी वजह से. फिर मुझसे पूछा कुछ और है क्या माल, कुछ और माल है क्या दुकान में. तो मेरे पास ये कहानी थी जिसका नाम उस वक्त आहुति था, रंग दे बसंती नहीं था. इस फिल्म का नाम कई बार चेंज हुआ है. पहले आहुति था, फिर हमें लगा बहुत ओल्ड फैशन है, आहुति 40s 50s की फिल्म लगती है. फिर वो यंग गन्स ऑफ 30s ऐसा कुछ नाम रखा गया. बोला ये तो कुछ हॉलीवुड जैसा लग रहा है. फिर बाद में जाके रंग दे बसंती जब नाम हुआ, मैं लोगों से शेयर करता हूँ कि जब स्क्रिप्ट घूम रही थी बाज़ार में विद प्रोड्यूसर्स, कई जो लोग थे पूछते थे कि बसंती का रोल कौन कर रहा है. ये जुमला जो है ये हमारी इंडस्ट्री की पहचान है. और मैं मजाक में कहता क्योंकि वो दोस्त ही थे, फिल्म इंडस्ट्री के दोस्त ही थे. मैंने कहा था ईशा देओल से बात चल रही है क्योंकि ये फिल्म जो है शोले का रीमेक है बसंती के पॉइंट ऑफ व्यू से.
बोले परफेक्ट, व्हाट एन आइडिया सर जी, आई आप ही कर सकते हैं शोले का रीमेक बसंती के पॉइंट ऑफ व्यू से, अमेजिंग। एनीवे, जोक से पार्ट। तो वो आवती कहानी जो थी कि भाई अतीत और वर्तमान जो है वो कैसे मिलता है, और उसके पीछे भी एक थोड़ी सी घटना है, मैं शेयर करूं आप लोगों से। शांताराम ने एक फिल्म बनाई थी संत तुकाराम 40s में, और उसमें एक्टर थे विष्णु पंत पगनीस। वो हमेशा संतों का रोल किया करते थे, और वो बहुत बड़ी हिट फिल्म थी। तुकाराम वॉज ए ह्यूज हिट, इतनी बड़ी हिट थी कि संत तुकाराम को लोग सच में तुकाराम मानने लगे। लोग उसकी आरती उतारते, पूजा करते, अपने बच्चों को ले आते नाम दिलवाने के लिए, शादी के बाद अपने बेटे बहू को ले जाते। मुश्किल तब हुई जब खुद विष्णुदत्त पगनीस को यकीन हो गया कि वो तुकाराम है। अब उन्होंने घर छोड़ दिया, 20 बच्चे छोड़े, जाके मंदिर में बैठ गए, भजन गाने लगे, फिर फाइनली उनको पागल खाने भेजा गया। तो वो चीज़ मेरे दिमाग में थी कि भाई एक रोल, एक किरदार जो है एक एक्टर के अंदर इतना घुस सकता है कि एक्टर समझे कि वो बन गया एक किरदार तुकाराम। तो वो आइडिया बेसिक वही था वहाँ से, वो तुकाराम फिल्म से, वो जो लाइव थी विष्णु पंत पगनीस की। और वो फिर मैंने इसमें डालने की कोशिश की, कैसे जो एक्टर हैं जो मजाक में ये रोल करने को तैयार होते हैं, और वो मजाक कैसे गंभीर हो जाता है। पिछले 10 साल में, अभी मैं बात कर रहा था वहीदा जी से कि हर साल हम लोग करीब 1000 फिल्में बनाते हैं, 10,000 फिल्में बनी होंगी पिछले 10 साल में कम से कम। और मैं अक्सर पूछता हूँ अपने वर्कशॉप में या बाहर भी सेमिनार में कि भाई एक फिल्म का नाम लीजिए पिछले 10 साल में बनी हुई जो आज से 10 साल बाद भी आप देखना चाहेंगे, और सिर्फ एक ही नाम आता है, रंग दे बसंती। मुझे ताजुब होता है, इट्स नॉट ए कॉम्प्लीमेंट, ये अफसोस की बात है कि क्या 10,000 फिल्मों में से सिर्फ एक ही फिल्म है जो हम दोबारा देखना चाहेंगे 10 साल के बाद। जहाँ तक मेरा सवाल है, मुझे अभी भी यकीन नहीं होता, क्योंकि जब ये फिल्म हम लोग काम कर रहे थे तो राकेश पूछते कि सर मगर ये फिल्म देखेगा कौन अगर बन गई तो, और रिलीज़ हुई तो, क्योंकि वो दौर कुछ अलग था, कुछ कुछ होता है, कभी कभी खुशी कभी गम। हमारी फिल्म ऐसा कुछ नहीं था। तो मैंने कहा राकेश यार, अगर इतने बड़े मुल्क में 1 अरब की आबादी में एक लड़का लड़की भी आके मुझे कहता है कि सर थैंक यू सर फॉर गिविंग अस रंग दे बसंती, मैं हो गया कामयाब, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। आई डोंट वांट एनीथिंग एल्स। और ऐसे इत्तेफाक होते हैं ज़िंदगी में कि आपने कुछ चाहा और इतना ज़्यादा मिल जाता है, आपको यकीन नहीं होता। आज भी लड़के लड़कियां 16 साल के, 17 साल के, 15 साल के और आप कहते हैं सर थैंक यू सर फॉर गिविंग रंग दे बसंती। मैंने कहा तुम साले 6 साल के थे पहले जब ये फिल्म बनी थी, तुमने कब देखा? मतलब हमने कई बार देख चुके हैं। मुझे लगता है कि ये फिल्म जो है ये सिर्फ एक पीढ़ी के लिए नहीं थी, ये हमेशा के लिए है। आगे जब भी हिंदुस्तान जवान होगा, रंग दे बसंती उस मकाम में उनके साथ सामने होगी, वो इस फिल्म को याद करेगा। ये हिंदुस्तान की जवानी की फिल्म है, आज भी उतनी ही रेलेवेंट है जितनी तब थी 10 साल पहले, और मुझे लगता है जैसे हालात हैं मुल्क में, आज से 10 साल बाद भी ये उतनी ही रेलेवेंट रहेगी। थैंक यू। कमलेश जी ने बहुत बात कह दी है। No, I think this film will always stay special for me. बहुत सी चीज़ें मैंने पहली बार की इस फिल्म में। राकेश जी और मैं बहुत पहले से वही एक एडवर्टाइजिंग के वर्ल्ड से जुड़े हुए थे, तो बात करते रहते साथ में कुछ करना है, और कॉफ़ी पी के फिर हम निकल जाते थे। तो ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म मिला जहाँ पर हम सच में जो कहते थे, जो बातें करते थे वो कर पाए। तो उसके लिए मैं हमेशा राकेश जी का शुक्रगुजार रहूँगा, जीवन पर्यंत रहूँगा कि ऐसा मौका आया जहाँ पर हम जो हम ख्याली है उसको एक वजूद भी दे पाए। उसके बाद आई वॉज राइटिंग एड्स फॉर आमिर हु आई थिंक फेल्ट दैट आई शुड राइट डायलॉग्स ऑल्सो। तो आमिर मुझे याद है, हम लोग एक आउट ऑफ द ब्लू रेस्टोरेंट है वहाँ पे हम लोग थे, तो ही वॉज देयर एंड ही सेड आप डायलॉग क्यों नहीं लिखते इस फिल्म के ऑल्सो। सो देन आई स्टार्टेड दैट ऑल्सो विद दिस फिल्म। और बहुत सी चीज़ें पहली बार की और ख़ुद को बहुत टटोला,
बहुत कुछ टटोला, बहुत कुछ था अंदर जो शायद इस फिल्म की वजह से कह पाए, अभिव्यक्त कर पाया। मैं कुछ दिन पहले ऐसी अपनी एक पोएम देख रहा था, मैंने रंग दे बसंती की बहुत बात लिखी, और जब आप बात कर रहे थे और राकेश जी आप जब बात कर रहे थे यंग गन्स की, तो मुझे सडनली याद आया कि आमिर, ये शायद आपने सुनी हो पर मैंने बहुत बाद में लिखी है। रंग दे बसंती का जो जिसे कहते हैं उसके कण कब तक जिंदा रहे मेरे अंदर, कि लोग कहते हैं लोग गलत रास्ते पे निकल जाते, बंदूक उठा लेते हैं, कि बारूद जब बच्चा था तब तितली पकड़ता था, बारूद जब बच्चा था तब तितली पकड़ता था, वो अंबिया भी चुराता था, पतंगों पर झगड़ता था। बारूद जब बच्चा था तब तितली पकड़ता था, वो अंबिया भी चुराता था, पतंगों पर झगड़ता था। अगर तुम उसका मांझा लूटते वो कुछ नहीं कहता, अगर तुम उसका मांझा लूटते वो कुछ नहीं कहता। थोड़ा नाराज तो होता मगर वो फिर भी खुश रहता, मगर धोखे से तुमने उसका बचपन भी तो लूटा है, मगर धोखे से तुमने उसका बचपन भी तो लूटा है। जरा देखो तो उसकी आंख में वो कब से रूठा है। जुगनुओं की रोशनी में दिल लगाने दो उसे, धूप के सिक्के उठाकर गुनगुनाने दो उसे, बैंगनी कंचे हथेली पर सजाने दो उसे। बारूद जब बच्चा था तब तितली पकड़ता था। ये कड़ है, ये बहुत बात भी लिखी हुई मेरी रचना है, लेकिन रंग दे बसंती अभी अभी हुआ यकीन कि आ गए मुझ में कहीं, वहां से वो सफर कहीं ऐसा निकला। और क्या होता है जब बच्चा होता है, कोई फिल्म जब भी लॉन्च होती है मैं देखता हूं कि उसको शैशव काल जिसे कहते हैं हिंदी में, बेबी होता है उस वक्त, उसको सब प्यार करते हैं, सब लोग उसके लिए प्रोटेक्टिव होते हैं, उस फिल्म के लिए, उस बच्चे के लिए। उसकी आंखें वल्नरेबल होती है। नेचर हैज डिजाइंड किड्स इन अ वेरी स्पेशल वे। इफ यू लुक, किड्स की जो आंखें भी होती हैं प्यार करने के लिए बनी है, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए बना है वो। when it's a baby, it's to be protected, but when it goes out in the world, उसके बाद वो अगर वो प्यार जीतता है, दिल जीतता है, तो अपनी हैसियत से जीतता है, अपने गुणों से जीतता है। वो फिल्म जो होती है वो लोगों से, उन सब प्यार करने वालों से, वो राकेश मेहरा से, उस आमिर खान से, उस वहीदा जी से, सबसे आपसे वो निकल गई वो फिल्म बाहर। अब वो लोगों के बीच अपना वजूद, अपना अस्तित्व रखती है, और उस अस्तित्व को अगर लोग प्यार करते हैं तो वो उसकी वजह से प्यार करते हैं। वो किसी टैलेंट की वजह से या किसी शख्स ने बनाई थी या उस व्यक्ति ने उसको पुश किया था, इस वजह से याद नहीं रखी जाती। तो रंग दे बसंती का अपना एक वजूद है जो उसने हासिल किया जाके बाहर। और वो प्यार, बड़े ग्रोन अप आदमी को प्यार करना बड़ा मुश्किल होता है, उसके लिए इतना प्रोटेक्टिव नहीं होते। नेचर हैज प्लेड इट्स रोल एंड स्टेप्ड आउट। यू आर ऑन योर ओन, यू हैव टू विन हार्ट्स, एंड दिस फिल्म हैज डन दैट। You can see that resonating today with people, and I would always be thankful. कितने गुण हैं इस फिल्म के। अभी आमिर और मैं रास्ते में बात करते हुए आ रहे थे तो हम कह रहे थे कि मैं कह रहा था कि एक गाना है लुक्का छुपी। जब ये गाना उस वक्त आया था, उस वक्त ये कहीं लूज कंट्रोल और रूबरू और खलबली के बीच कहीं एक मर्मर था, जिसे कहते हैं मर्मर होता है, एक हल्की आवाज होती है जो कहीं एक बांसुरी की आवाज़ होती है जो ढोल की आवाज़ में सुनाई नहीं देती। वो एक ऐसी आवाज़ थी। लेकिन आज, उस दिन ए.आर. रहमान मुझसे कह रहे थे, और अभी थोड़ी देर पहले मैं इनफैक्ट ही सेड कि मुझे आप अगर फेस टाइम कर सकते हैं तो आई डोंट थिंक दैट्स पॉसिबल, बट आई वुड हैव लव्ड टू हैव हिम हियर बिकॉज आई एम मिसिंग ए.आर. रहमान हियर। यू नो, किस तरह से ये गाना कंपोज हुआ था। राकेश जी, मैं और ए.आर. रहमान हम लोग बैठे थे और ये गाना था नहीं फिल्म में, फिल्म शूट हो चुकी थी। बैकग्राउंड स्कोर के टाइम पे ये एक सीन था जिसमें वहीदा जी जो है वो चिता जल रही है और आप हैं, वहाँ पे बैकग्राउंड स्कोर था, और उस वक्त ये उन्होंने धुन बजाना शुरू की थी। एंड देन आई सेड, कैन इट बी पॉसिबल कि ये बच्चा और माँ लुक्का छुपी का खेल खेल रहे हैं और बच्चा हमेशा के लिए छुप गया है, कभी नहीं ढूंढ सकती उसे ये। एंड देन दिस सॉन्ग वाज बॉर्न। एंड ये आज जब लोग बात करते हैं तो लुक्का छुपी की बात करते हैं। शायद वो चीज़ें, वो गुण, वो एट्रीब्यूट्स, those attributes which were lost are known to people today. I think that's the power of the narrative, the power of everyone in this room. I'm really always going to be grateful that I got this opportunity. To Amir and to Rakesh ji and to everyone in this room, I'm really, really thankful. You know, I think in my flat, there is one room with a poster of Rang De Basanti. And since Rang De Basanti, it's been 10 years, I've tried to put a poster of another film up. You know, I've
tried to summon that courage to put it up. And I've even gone halfway, like I've gone halfway and put it like, looked at two posters together and I said, nahi yaar. Somehow I can't put another poster up in my house near Rang De Basanti. And I don't know why it's not a logical thing, it's just an emotional reaction. It has helped me, it has helped, I think, writers. Every time a producer, every time a client says, no, the Indian audience doesn't understand. You say, no, see, Rang De Basanti, complex film, complex screenplay, they understood. And suddenly that room goes quiet and you can sell another idea. You can be braver, you can be more courageous. You can have a lot of people in the room suddenly come to your side of the table. And it takes a very special film, I think, to break through very thick walls and very high walls that people have about what the Indian audience can take as an idea. I was directing Omji somewhere in a film, and suddenly we stopped making the film and we started talking about Rang De Basanti because he said, matlab, ye film nikal gaya. You were very lucky. Go back to that film, look at it again, and just think how the hell this film worked. So I went back and I started getting really scared halfway through the film. Because just think about this film's premise. There's a British girl who comes to India and makes friends with these guys and convinces them to do a film about the young guns of India. And in the process of doing the film, now you can understand how complex it gets, they suddenly become the characters and then they all die. This is by no means a formula for any successful film ever in this country. It is a sure blueprint for doom. And yet this film resonates and stays in the popular culture and makes us all meet on a day like this. And I can only think that we shouldn't congratulate ourselves too much. I think there is some divine force that has smiled down on us. No matter what we are still human. But this film seems to have got some magic, some power that still makes it talk to an audience, move an audience, and makes that audience hold it in very high esteem. I couldn't be prouder. So carrying on, सुबह लता दीदी से बात हुई थी एंड शी इज़ इन पूना एंड उन्होंने कहा कि मेरा आशीर्वाद आपके साथ है और आप सबके साथ है और मेरे को तो बहुत अच्छी लगी थी रंग दे बसंती। तो लुका छुपी की बात हुई थी एंड वी वर गोइंग टू रिकॉर्ड एंड वेरी कीन दैट लता जी sings a song. और 2-3 बार हुआ था, हो नहीं पा रही थी बात, कुछ बन नहीं रही थी। 1 साल से हम सोच रहे थे ऐसा कुछ होगा। And then out of the blue I again called her and she said, हाँ बेटा, कैसा है गाना तो भिजवा दो मेरे को मुझे। तो मैंने कहा वो तो आप रहमान साहब को जानती हूँ, वो तो बनते बनते बनेगा और ये लिखते लिखते लिखेंगे और मैंने शूट कर लिया है। अच्छा ऐसा भी होता है आजकल ऐसा होता है। सो वी हैड अ रिकॉर्डिंग ऑन द 15th of November, I remember, and she said, मैं कुछ 9 तारीख या 10 तारीख को मुझे चेन्नई आना है। I thought she must be having something, and she came on the 9th or 10th, I don't remember. And then every day she would come to the studio and start rehearsing the song. I would like this to sink in. Lata Mangeshkar would come to the studio every day and rehearse the song. For 4 days she rehearsed. तो अब हमें आदत नहीं है
my, singers come and they walk out. मतलब before we know the song is over. No aspirations to them, but आदत नहीं है हमें, आता नहीं है. तो अंदर से हो रहा है ये, बहुत अच्छा भी लग रहा है और ये हो क्या रहा है, और फिर ये सब. एंड फाइनली उनकी रहमान साहब से बात हुई एंड शी स्टूड एट द माइक. वी वर इन द रूम एंड उनकी चोटी तो ज़मीन तक थी एंड शी वॉज स्टैंडिंग देयर. वी केप्ट some flowers, bottle of water and a chair for her. For 8 hours, she sang the song. And for 8 hours, she stood there. So, no wonder a film like, things like this happen. So, a big one for Lata ji, who is not here, guys. I have a very, very dear friend in this film. And I had done a film with him earlier already, Yaks. And we were like true husband and wife, always fighting. Always. Never agreeing on anything. Either he would end up crying or I'd end up crying, or root ke nikal jana, set chhod ke. Unfortunately, he is not with us anymore. Sameer Chanda. He was a production designer. My request is if all of us can just maintain 1 minute silence, sir. Thank you. I think the ladies of Rang De Basanti were definitely stronger than the boys and men of Rang De Basanti. There's no question about it. There's this one lady who was a backbone, is the backbone of the movie. She was present for every scripting session, hugely critical of everything. Present for every hair session, didn't like any hairstyle. Present for every wardrobe session, nothing ever worked for her. Present behind the monitor for every shot, and I used to run scared shortly कि यार कहीं वो देख ना ले क्योंकि ये तो फेल ही होने वाला है, ये होने वाला नहीं है. And then मतलब it was a bad luck. She had to edit the film also and go and win the national award for it. P.S. Bharti, she's sitting here. Guys, big one for her. She also completes me in a big way. Completes maybe 98% of me. And to 2%. So, I love cinema. We all love cinema. We all have our favorite films. And I mean, if you ask me, what are your favorite films? Just ask me. प्यासा, कागज के फूल, मुझे जीने दो, गाइड, तीसरी कसम, और भी है, बट यहाँ के मैं सांस लेता हूँ. Now, I'm ringing the bell, and I'm going to meet the lady behind these films, the force. I'm going to narrate this story to her and ask her to be a part of it. मैं अभी भी नहीं आँख मिला पर somehow
मतलब कहते हैं ना कि if you are a fool then should be a complete fool. So in my moment of foolishness, I rang the bell, I went in, I narrated the script, nothing happened. 3 months later, I took a flight to Bangalore, and this lovely farm, and there were so many coconuts, and we had a lovely breakfast. I still remember there were pizzas and all that. And maybe, नहीं बेटा वो अभी तो मतलब I've carried on. So finally, when nothing worked, I said, ठीक है, I will make the set outside your house. Every time you have to walk, you will have. आपको बुरा लगेगा, देखो ये मैं आपके मतलब घर से निकलना पड़ेगा, तो अब blackmail करना पड़ा. Ladies and gentlemen, it was, I can't tell you, it's impossible when you adore someone so much, when you really love someone so much and look up to somebody's craft so much. Forget about just the personality. When you learn from every move, every delivery, how a character has been interpreted, to call action to the same person is impossible. I would request Bharti to please escort Vaida ji, and both of you will have to share something. Finally, I've got both of you. गुड इवनिंग. मुझे इस फिल्म में काम करके बहुत मज़ा आया एंड आई एम रियली प्राउड टू बी पार्ट ऑफ दिस ग्रेट मूवी. और सबसे अच्छी बात इस मूवी की ये थी कि पिक्चर रिलीज़ होने के बाद मैं काफ़ी बेंगलोर, दिल्ली, इधर उधर ट्रैवल करती हूँ. कई लोगों ने आके मुझसे कहा, वहीदा जी ये जो रंग दे बसंती फिल्म है सिर्फ देखने में नहीं अच्छी है, उसने हमको सोच दी है. सोचना पड़ रहा है कि हम हर बार दूसरों को इल्ज़ाम देते हैं कि आप वो ठीक कर दीजिए, आप ये ठीक कर दीजिए. इस फिल्म ने हमें ये सिखाया है कि हम क्या करने वाले हैं, हमको क्या बेहतर करना है. सो इट्स अ वेरी ग्रेट मैसेज टू बी गिवन टू द यंगस्टर्स एंड आई एम रियली वेरी हैप्पी. आई थैंक यू राकेश एंड भारती. ये बड़ी कोशिश की मैंने कि निकल जाऊं पतली गली से, मुझे जाने नहीं दिए. वो बेंगलोर पहुंच गए और बॉम्बे आते रहे, फ़ोन करते रहे. फिर एक बार भारती ने अपने घर से, नोइंग कि आई एम फ्रॉम तमिलनाडु एंड आंध्रा, उन्होंने अचार भी भेजने शुरू कर दिए. तो मैंने कहा भैया अब तो करना ही पड़ेगा. And thank you so much, Rakesh. Thank you, and I enjoyed working with both lovely, great actors and Ronnie. आमिर के साथ पहली बार मैंने काम किया, सबके साथ पहली बार मैंने काम किया. It was wonderful and great experience. Thank you. Okay, I'm not normally used to this. I'm somebody who's behind the camera most and the editing table behind the monitors. But the thing that I remember the most is that it was very tough making this film. I think we tried to make some kind of a documentary which hopefully people will see. But when things were not happening, the one thing I remember was this, there's a dialogue in the film of DJs which said something about never fear. And जिंदगी जीने के दो तरीके होते हैं. या बदल दो. And we were at a stage where we were not trying to change things. Things were not happening. We were not getting money. No producers. We had hawked our house to run the office. And when that message came from Amir at that time saying that the same dialogue that was in the script, when we yet hit another wall,
I think that was the thing I remember the most in the film. It was the film talking back to us, yeah. And I think I had a great experience working with everybody. And thanks everybody for being there with us on this film. Thanks everybody. So Bharti is forgetting. She sent me a SMS which said there was a quote in Times of India. There are two primary choices in life. One is to accept the conditions the way they are, or accept the responsibility of changing them. So that thought, Bharti, came from you. कि जिंदगी जीने के दो ही तरीके होते हैं, एक जो हो रहा है उसे होने दो, दूसरा जिम्मेवारी उठाओ उसे बदलने की. मतलब मैंने डायलॉग की but that's not my job. So there is something about things where when you really want them and you're willing to put everything at stake, उसमें मज़ा भी बहुत आता है. I remember Amir was finishing Lagan, and I had texted him. He was in London, and I said, I want to narrate, and I was nobody. He didn't even know कौन है राकेश मेरा, क्या चीज़ है. No, I know. इतना मत 10 साल हुए अभी सिर्फ, ज़्यादा नहीं. So went to him, and there was lovely photographs. I remember those black and white, and started over a cup of tea, started narrating the story to him. And we went through the narration, and chalta gaya, and he listened in rapt attention. And after like 15, 16 cup of teas, we knew we were doing the film. And I could feel it. And then Amir stepped into the movie. And still he had a film in between. He was doing Mangal Pandey after that. And we had worked out everything, so he would come back, and in the next 6-7 months, we will start Rang De Basanti. हमने सारी प्लानिंग कर ली, सारी लोकेशंस देख ली, सब कुछ हो गया, ये हो गया, वो हो गया. Mangal Pandey got over. I think you took a 15-20 day break, came back, and we started working on Rang. Then we were supposed to shoot in 6 months from then. But I could not bring the film together. I could not mount it, get the resources together, and many other things. It was not just about resources. I was learning, totally learning. So I'm learning how to play cricket. तो नहीं आ रहा मेरे को. क्या कर? बॉल निकलते आ रही है, कभी बाउंसर आ रहा है, कभी ये हो रहा है. Don't even know how to duck. कोई लग रहा है. 6 महीने हो गए. Amir was patient. हमने कहा इसको 4 महीने और देते हैं. ठीक है, 4 महीने और देते हैं. 4 महीने दे दिए, फिर भी कुछ नहीं हुआ. लीगल हैसल शुरू हो गए फ्रॉम द अर्लियर प्रोड्यूसर्स. ही हैड द फोरसाइट. खैर वो दूसरी कहानी है. हाउ वी वर्कड इट आउट एंड हाउ Amir saved the situation there. अब तो कर ही देंगे 3 महीने में. चलो 3 महीने और हो गए, 13-14 महीने हो गए, और नाउ his well-wishers are coming to him. What's going on, Amir? तू क्या कर क्या रहा है? You should be shooting. Are you crazy? This is your career. And फना की स्क्रिप्ट रेडी हो चुकी है. वो कह रहे यार तू आदि is telling Amir तू पहले ये कर ले, फिर रंग दे कर ले. तो कहते अच्छा हाँ देखते हैं क्या करते हैं, और 4 महीने निकल गए. Guys, this is not, we have to understand what's going on. One of the most sought after persons is saying, side में रखो, अभी
आई एम पुटिंग एवरीथिंग ऑन पॉज, इसको पहले सही करते. So for 14 months, 15 months, 16 months, nothing happening. And then things started happening. I remember it started happening on 31st Jan when Ronnie came in, and 31st December, and 1st से हमने शुरू किया. But in the meantime, it was a blessing in disguise. Everything has a point in it. We got to speak the script, discuss it much more. The team started coming together. Atul was the first one into the film. He was always present for any of the auditions. And everyone, Sid came for audition in the house, मुझे आज भी याद है, आज हम वहीं जाने वाले उसी घर में जहाँ का audition हुआ था. मेकअप रूम भी हमारा वही घर ही था. So we started going through the script, every line. In the meantime, when we had changed, things that happened, and he has an elephant's memory. He said, नहीं वो तू आया था उस दिन ऑफिस 2 साल पहले, वो तूने वो एक लाइन बताई थी. He shot a film in between. एक फिल्म हो चुकी है भी. मैंने कहा नहीं ये दिस इज रिवाइज. नहीं, मेरे पास सारे ड्राफ्ट हैं, टैं करके मेरे पास 8 ड्राफ्ट हैं. फर्स्ट वाला देख तू, उसमें तेरा हार्ट था. तू क्या कर रहा है मेरा, पागल हो गया. सो अब मेरे पास काम धंधा नहीं था, तो मुझे कुछ तो करना था, तो आई केप्ट चेंजिंग थिंग्स, बट ही केप्ट टेकिंग मी बैक. चलो ये भी हो गया. सो अब इसमें थैंक यू वाली कोई बात है नहीं. एंड देन व्हाट भारती वाज सेइंग कि व्हेन Citibank started jumping up and down, I got a message from Amir कि ज़िंदगी जीने के 2 ही तरीके होते हैं. एक जो हो रहा है उसे होने दे, या मेरा उसको जिम्मेवारी उठा बदलने की. So I had a very, very like-minded soul and strength behind me, which was wonderful. Amir was there, Bharti. So it was, ये मुझे बोल रहे थे खेलो, तुम जाओ अंदर घुसो, खेलो. And that's the only reason it happened. You take a left turn from Mahim and you come into the highway. And I think I've shared this before. And there's a statue there which says, a child gives birth to a mother. It's amazing. Here was Amir who gave birth to a director. Ladies and gentlemen, Amir. मतलब डायरेक्ट मैंने ही किया था. मेरा कुछ ज़्यादा ही बोल दिया तूने यार. ये हम सब के लिए बहुत ही जज्बाती लम्हा है और हम सब की यादें आज ताज़ा हो रही हैं. So many memories attached to this film. It's been a बहुत ही एक यूनिक एक्सपीरियंस रहा है हम सब के लिए. और वैसे तो बहुत चीज़ें हैं, लेकिन मैं 2-3 चीज़ें कहना चाहूँगा. एक तो ये है कि मुझे लगता है कि ये फिल्म एक ऐसी फिल्म है जिसका असर हम पर आज तक है, जिसने हमको किसी ना किसी तरह हमें ट्रांसफॉर्म किया, हम पर एक रंग छोड़ा है. जो रंग दे बसंती टाइटल है, ये बसंती रंग हम पे कहीं ना कहीं उतर गया है इस फिल्म के ज़रिए, ये फिल्म करने के ज़रिए. जिस तरह फिल्म के किरदार जो हैं वो पास से इफ़ेक्ट होते हैं, उसी तरह मुझे लगता है हम सब, ये फिल्म ने कहीं ना कहीं हम सबको बनाया है. तो ये बहुत ही ख़ास फिल्म है हम सब के लिए. और जैसा कि मेरा बता रहा था कि ये फिल्म जो है, जब तक हम बना रहे थे वो हमारी थी, जब हमने रिलीज़ की तो ये ऑडियंस की फ़िल्म हो गई. और वाकई ऑडियंस ने इसको बहुत ही प्यार और इज़्ज़त दी, जिसके लिए हम बहुत ही शुक्रगुजार हैं. वी वेरी रियली ग्रेटफुल फॉर दैट. और असल में फ़िल्म जो है ये ऑडियंस ने बनाई है इन द वे दे रिस्पॉन्डेड टू द फिल्म. मेरे लिए 2 चीज़ बहुत अहम थी इस फिल्म में. एक तो ये कि
मैं चंद्रशेखर आज़ाद का रोल कर रहा था। ये एक मौका था मेरे लिए एक ऐसे किरदार निभाने का जो हमारे इतिहास में है, समवन हुज बीन सच पेट्रियट। और दूसरा जो मेरे लिए बहुत ही एक अहम चीज़ थी, जब मुझे मेहरा ने बताया कि वेदा जी फिल्म में, इट वॉज अ वेरी स्पेशल मोमेंट फॉर मी। आई वॉज सो हैप्पी कि मुझे मौका मिल रहा है अपने ज़िंदगी में वेदा जी के साथ काम करने का, बिकॉज आई बीन सच अ ह्यूज फैन ऑफ यू वेदा जी। इट वॉज रियली रियली वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग फॉर मी। आई थिंक मैं सभी का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा, लेकिन मैं शुरुआत करूँगा राइटर्स से, जो लेखक हैं इस फिल्म के। उनकी वजह से ये फिल्म का जन्म हुआ और ये बनी, और हम सबको एक मौका मिला कि हम इसके साथ जुड़ सकें। तो मैं अपने आप को बहुत ही खुशनसीब मानता हूँ कि मुझे मौका मिला इस फिल्म का एक हिस्सा बनने का और सभी के साथ काम करने का, एक्टर्स के साथ, टेक्नीशियंस के साथ, एंड इट्स रियली बीन अ मेमोरेबल फिल्म। थैंक यू मेरा, थैंक यू फॉर मेकिंग इट, थैंक यू फॉर राइटिंग इट, थैंक यू। So this is a documentary which has been directed by Bharti. She's taken 5 years, 6 years. Every time I पूछता था हो गया, it took her like first 2 years, then 3 years, then 5. Then after 7 years, finally, it was not. I went and took a transfer from a machine because she said, क्या है? नहीं, there's a reason behind it. It is very interesting. She said every year something is happening from Rang De Basanti. Mohit Chauhan, sir. And she kept saying, the Air Force. So she said, I can only do when I feel that I've got all the material. A very, very interesting part of the film after it was made and went out is the universe that conspired with us. Definitely the people of this country. The media was so understanding of the film, so understanding that they understood the idea behind the film, they understood the film, and they kind of snowballed the idea further. One of our dear friends who was always stood with us and kept taking it to theaters, Ajay is right here. Ajay, you can't escape this. You'll have to share briefly, and then I would request you to present the screenplay book to Kamlesh and Renzel and Amir also. Yeah, Ajay. Good evening, everyone. Just want to congratulate Rakesh, Amir, Ronnie, and the entire team, Prasoon, the whole team of Rang De Basanti. I mean, I'm a cinema operator, but before that, I'm a movie buff. So it really impacted me when this movie came out. And I remember it was like, obviously 10 years ago, in Priya. That's the time I first time met everyone. And on a personal level, it also started some great friendships. I got to meet everybody properly. And I think everybody was sitting in the office and playing, I think it was, Trivial Pursuit. And it was a very intelligent sort of, game going on. I was completely lost. And I asked Amir to come to the other room and meet me because I was so fascinated then Mehra with the film. So that's all I'll say. It's a wonderful moment that you're celebrating 10 years because it's really one of the top movies ever made in India. And at least it'll remain my top favorite for times to come. And congratulations to the entire team once again. Thank you, Ajay. We would request Amir. And to present the first copy to Kamleshi and Renzel, please.
And Ronnie, please. Ronnie. You have to. Yeah, please. Oops. So this is a screenplay. It has the lyrics, it has the storyboards, it has anecdotes, it has a wonderful spatial interview with Prasunji, A.R. Rahman and Amir about the Rang De Basanti movement. It has stuff from Ronnie, what he felt about it, forward from Kamlesh ji, Renzel. गणेश जी ऐसा कैसे हो सकता है आप आए और कोई नाचे ना, ये मेरे को समझ नहीं आ रहा. प्लीज इन लड़कों को एक बार और नचाइए. Guys, a big one for that. One group photograph and then yeah, for all of us. Yeah, thank you very much. I think I've got another job. ये direction नहीं चली, मैं MC तो बन सकता हूँ.